topic for today, before we get into the word, हम संदेश में जाने से पहले I would like to welcome anyone who's come in here for the very first time. अगर आप में से कोई पहले बार हमारे बीच में आए हैं, हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। We would like to welcome you. हम आपका स्वागत करते Come on, हैं। let's give him a warm saving grace welcome. आइए हम सेविंग ग्रेस कलीसिया की ओर से जोर से ताली बजाकर उनका स्वागत करें। Let's all stretch our hands to this brother. आइए हम अपने हाथों को उनकी ओर बढ़ाएं। Lord, we thank you for this brother who has walked in here today. Lord, we thank you, Jesus, Lord, that he has come in here not by any accident, but by divine appointment, oh Lord. We thank you, oh God, Jesus, Lord, that as he walked in here, oh God, Lord, that your power has already touched him, oh Lord. We pray, oh God, Jesus, Lord, every desire, every need that he has brought with him today, I pray, oh Lord, that he would meet you, Jesus, Amen, Lord. amen. Lord, we pray, oh God, Father, Lord, everything, oh God, that is lacking in him, oh God, Jesus, Lord, that he has a desire for, every need in his life shall be met in the name of Jesus, Amen. oh Lord, Father. We thank you that he has come in here. He may have come in empty, but he will go back full today Amen, morning. amen, That is our amen, prayer, amen. oh Lord. We bless him in the name of Jesus. All of us together, we lift up our voices and we bless him in the name Yes, of Jesus, amen, oh Lord. amen. We thank you for this brother's life. In Jesus' name we've prayed. Amen. 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 My topic for today morning, और आज का मेरा जो शीर्षक है it's called overcoming the seasons of delay. वो कहता है देरी के मौसम पर काबू पाना। You know, there are so many seasons in our life where we see a delay in our blessings. और हमारे जीवन में से बहुत सारे मौसम आते हैं जहाँ पर हम देरी देखते हैं हमारे आशीषों को पाने में। And today we are going to understand how we can overcome these seasons of delay. और आज हम सीखेंगे और समझेंगे किस तरह से हम ये देरी के मौसम पर काबू पा सकते To हैं। understand the seasons of delay, और ये देरी के मौसम को समझने के we लिए need to first understand what does delay mean. तो हमको ये समझना पड़ेगा देरी का अर्थ क्या होता You know, है। delay means to postpone something. देरी का अर्थ होता है कि कोई सारी कुछ बातों को जो है वो टल जाना। Delay means for our progress to slow down. देरी का अर्थ होता है कि हमारी जो सफलता है वो धीमी हो जाती है। Delay means where the momentum is fast going in our life and suddenly everything slows down. देरी का अर्थ ये होता है कि कोई बातें हमारे जीवन में बहुत रफ्तार से चलती है और एकदम से वो रुक जाती You know, है। are there any of you who are sitting here who are experiencing delay in your क्या आप में life? ऐसा कोई है जो अपने जीवन में देरी को महसूस कर रहे Now, हैं? today we are going to understand how we can overcome these seasons. और आज हम सीखेंगे कि हम इस ऐसे मौसम को कैसे हम इस पर काबू पा सकते You know, हैं। why do delays come? कि देरी हमारे जीवन में क्यों आती है? Delays come to frustrate us. क्योंकि वो आती है ताकि वो हमें परेशान कर They want सके। us to give up. वो चाहती है कि हम जो सारी बातें जो हम कर रहे हैं उसे छोड़ दें। You know, we are praying for something हम कोई बातों के लिए प्रार्थना and करते we are हैं seeking God और हम परमेश्वर की खोज में and रहते we हैं are going day after day into His और presence, हम दिन ब दिन परमेश्वर की उपस्थिति में भी but we जाते don't हैं find the answer. पर हमें उत्तर नहीं मिल पाता You know, there is a delay. क्योंकि वो एक देरी है। For some of you, you all must have waited for a blessing for years. और आप में से ऐसे कोई होंगे जो आशीष को पाने के लिए सालों से रुके हैं Some of you who are sitting here have been praying for something for years. और आप में से ऐसे कोई होंगे जो कोई बात किसी चीज के लिए सालों से प्रार्थना कर रहे And हैं you're just seeing that thing that you are praying for just gets delayed every season. और आप देख रहे होंगे कि आपके जीवन के हर एक मौसम में वो सारी जो बातें की जो राह आप देख रहे हैं वो देरी उसमें हो रही And what है। happens in this process, you know, और इस कार्य में क्या होता है, we get frustrated. हम परेशान हो जाते We हैं, don't want to pray anymore हमको प्रार्थना करने का मन नहीं करता because we feel that God is no longer answering क्योंकि us. हमें लगता है कि परमेश्वर हमें हमारी प्रार्थना का उत्तर ही नहीं दे Today रहा। morning, I want to tell you one thing. आज की सुबह मैं आपको एक बात बताना चाहती Just हूँ। remember एक बात याद रखना that delay does not mean denial. कि देरी अगर होती है इसका मतलब ये नहीं कि बात कभी होगी ही नहीं। Delays do not mean denial. देरी का अर्थ ये नहीं कि आपके जीवन में वो बात होगी ही Has a नहीं। blessing been delayed in your life? अगर आपके जीवन में कोई आशीष रुकी है, You know, are you waiting for something that is taking too long to reach you? अगर आप अपने जीवन में ऐसी कोई चीज की बात जो रहे हैं जो आपके जीवन में पूरी होने के लिए समय लग रहा है, It does not mean God has denied it to you. इसका अर्थ ये नहीं कि परमेश्वर उससे आपको नहीं देगा। The devil wants to frustrate you. क्योंकि शैतान जो आपको परेशान करना He चाहता wants you to है, give up. वो चाहता है कि आप उसकी वो बातों को छोड़ दें। You know, because the more you pray, क्योंकि जितना आप प्रार्थना करते हैं you know, you're going closer to God. तो आप परमेश्वर के उतने करीब जा रहे हैं And then that blessing gets delayed. और तभी फिर वो आशीष जो है उसमें देरी हो जाती And है then that answer gets delayed. और वो उत्तर में आने में देरी हो जाती है You know, and then the devil is happy. और फिर जब शैतान खुश होता है Because we feel that God is no longer answering क्योंकि us. हम समझते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे So रहा, we stop praying. तो हम प्रार्थना करना ही छोड़ Because देते we हैं think that it's not going to come. क्योंकि हमें लगता है कि वो बात होगी ही नहीं। You know, we need to understand this. हमें एक बात समझनी है Not all delays are not denials. कि जो जितना देरी होती है उसका अर्थ ये नहीं कि चीजें होगी नहीं, You know, it will come. वो पूरी होगी। The vision will come to pass. आपके जीवन का जो उद्देश्य है The वो पूरा Bible होगा। says that it may
tarry for some time, बाइबल बताती है कि चीजें कुछ क्षण के लिए इसमें रुकावट आ सकती but है, it will come to pass. पर वो पूरी जरूर होगी। That is the word of God. ये परमेश्वर का वचन है। We need to understand, sometimes we think, why is God staying silent? और हम बहुत बार ऐसा सोच रहे हैं कि परमेश्वर शांत क्यों है? Have we not prayed enough? क्या हमने पूरी तरह से पूरा प्रार्थना नहीं Am की? I not seeking Him enough? क्या हम परमेश्वर की बात नहीं जो रहे हैं? Sometimes God allows those delays in our life. कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर वो देरी हमारे जीवन में आने देता The है, word itself says that, the vision may tarry for some क्योंकि time, वचन खुद ही कहता है कि जो दर्शन है वो कुछ समय के लिए उसमें देर आएगी, but it will surely come to pass. पर वो आपके जीवन में जरूर पूरा होगा। Why does God allow that vision to tarry? परमेश्वर हमारे जीवन में उस दर्शन को पूरा होने में रुकावट क्यों लाता I है? want to explain to you 3 reasons why sometimes God allows a delay in our life. मैं आपको 3 मुद्दे के बारे में बताऊंगी जहाँ पे परमेश्वर हमारे जीवन में देरी को आने देता The है। first reason why sometimes our blessings get delayed, पहला जो मुद्दा है जिसकी वजह से हमारी आशीष रुक जाती है, it is to develop our character. ताकि हमारा चरित्र निर्माण हो God सके, is very interested in our character. क्योंकि परमेश्वर हमारे चरित्र में बहुत दिलचस्पी He is रखता not है। interested in how much money we have. वो खुश नहीं होता है, दिलचस्पी नहीं रखता कि हमारे पास कितना पैसा He है। is not interested in how much wealth you have. वो ये नहीं चाहता कि आपके पास कितनी धन दौलत He is है। not interested in all the achievements that you have made on this earth. इस पृथ्वी पे आपने जितनी भी सफलता को प्राप्त किया उसमें उसको दिलचस्पी नहीं The है। Lord is not interested in how many gifts of the Holy Spirit you carry. वो इसमें भी दिलचस्पी नहीं रखता कि पवित्र आत्मा के कितने फल आप में The है। Lord is looking at your character. परमेश्वर आपके चरित्र को देखता है। Are you becoming Christ-like every क्या day? आप हर दिन यीशु मसीह के जैसे बन रहे हैं? The entire reason that we live this life ये जो जीवन जीने का जो कारण है, is to become more like Jesus. उसका उद्देश्य ये है कि हम यीशु मसीह के समान बने, Because Jesus was taken back into heaven. क्योंकि यीशु मसीह को पुनः स्वर्ग में ले लिया So गया। all those who become like Jesus, only they will go to heaven. क्योंकि और हर कोई जो यीशु मसीह के जैसा बनेगा वही स्वर्ग में जाएगा। So sometimes those delays come to build up our character. तो हमारे जीवन में देरी आती है ताकि हमारा चरित्र निर्माण हो The सके। book of Romans chapter 5 verse 3 and 4 says, रोमियो उसका 5वां वचन 3 और 4 कहता है, and Apostle Paul is encouraging us. और प्रेरित पौल हमें इसमें उत्साहित करता He है। says, you'll learn to start glorying in your tribulations. पर वो कहता है कि अपने सताव में आप धीरज बांध के रखें। Start rejoicing in your tribulation. अपने आप जो आपका सताव आता है उसके अंदर आप आनंद बनाएं, Because we need to know that when after the tribulation we learn perseverance. क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब हम पे विपत्ति आती है उसके बाद हम धीरज को उत्पन्न करते हैं। After we have learned how to persevere, और जब हम धीरज से रहना सीखते हैं, that is when our character gets developed. तभी हमारा चरित्र निर्माण होता When the है, Lord is testing us, क्योंकि परमेश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है। are you worthy of that blessing which I am giving तो you? जो आशीष परमेश्वर हमको देने पर है, क्या हम उसके योग्य है भी या नहीं? When you join a company जब आप एक कंपनी को ज्वाइन करते हैं and you're at a fresher level, और आप जब एक फ्रेशर होते हो, the company is not going to pay you the salary of a manager, क्योंकि जो कंपनी होती है वो आपको वो तनख्वाह नहीं देती जो वो एक मैनेजर को देती है, because the company needs to first test you. क्योंकि कंपनी आपको परखना चाहती है। When they give you the responsibility of being a manager, जब वो आपको एक मैनेजर बनने की जिम्मेदारी देते will you हैं be able to take it? तो आप क्या उसको पूरी तरह से कर पाओगे? So अच्छे से? sometimes when we go through difficult seasons in our life, तो जब हमारे जीवन में ऐसे कुछ देरी के मौसम और कठिन मौसम आते we हैं, need to check, तो हमें अपने आप को चेक करना है is my character becoming more like Jesus? कि क्या मेरा चरित्र यीशु मसीह के समान बन रहा है? Am I becoming more like Jesus every day? क्या मैं हर दिन यीशु मसीह के समान बन रहा हूँ? James chapter 1 verses 2 to 4 says, याकूब इसका पहला अध्याय वचन 2 और 4 कहता है, now even James, the brother of Jesus, even he's encouraging us. यीशु मसीह का भाई जो याकूब है वो भी हमें उत्साहित He's करता है। saying, brother, count it all joy when you fall into different trials. वो कहता है कि मेरे भाई जब तुम पे परीक्षा पड़ती है तो तुम बड़े आनंद की बात समझो। He says, knowing that the testing of your faith produces patience. वो कहता है कि तुम्हारा विश्वास जब परीक्षा में सफल होता है, And he says, let patience complete its full work in your life, और वो कहता है कि धैर्य आपके जीवन में अपना पूरा कार्य को करे, so that you may be perfect, ताकि तुम एक पूरे सिद्ध हो so जाओ, that you may be complete, ताकि तुम पूर्ण हो जाओ and that you shall lack nothing. और तुम में कोई कमी ना रहे। How many of us become happy when there's a situation or a problem in front of us? हमारे सामने जब कोई विपत्ति आती है तो हम में से कितने लोग हैं जो खुश होते हैं? No one. We get so frustrated. कि कोई खुश नहीं होता क्योंकि सब परेशान हो जाते हैं। Last week was the month end. पिछला सप्ताह जो था वो महीने के समाप्त का था। At the end of the month,
everyone's pocket becomes tight. और मैंने कि अंत में हर किसी की जेब खाली हो जाती Now है। imagine if I tell you you have no money in your bank, but start rejoicing. Come, let's dance. तो अगर आप ऐसा सोचो कि मैं आपसे कहती हूँ कि आपके जेब में कोई पैसा नहीं है पर आप आनंद मनाओ, आप नाचने लगो, You know, can you do it? क्या आप वो कर पाएंगे? But the Bible says I have to count it all joy when I'm put into various पर trials. परमेश्वर का वचन बताता है कि जब हम पर परीक्षा पड़ती है तब हमें आनंद मनाना है। Very easy to preach. ये बताना बहुत आसान है Very difficult to practice. पर इसको पूर्ण करना, इसके मुताबिक चलना बहुत कठिन। And we don't believe in double standards. और हम डबल स्टैंडर्ड्स में विश्वास नहीं Even करते। when the Lord tests me through different seasons of life, our first reaction is to get scared, is fear. You know, we just forget that God has a greater purpose. और जब मैं भी परमेश्वर, जब मुझे भी कभी कोई कठिन समस्या ले जाता है तो सबसे पहला जो मेरा रिएक्शन होता है वो है हम डर जाते हैं, हम घबरा जाते हैं। But sometimes delays come to build your character. पर बहुत बार हमारे जीवन में देरी आती है ताकि हमारा चरित्र निर्माण हो God is सके, interested in our character. क्योंकि परमेश्वर हमारे चरित्र में दिलचस्पी And रखता He's not है। interested in the character that we show others. और हम वो उस बात में भी दिलचस्पी नहीं रखता कि जो चरित्र हम दूसरों को दिखाते And He's हैं, not interested in the character that we play on Sundays. कि हर रविवार पे जो हम अपना चरित्र यहाँ ले आते हैं उसमें भी वो दिलचस्पी नहीं He's रखता। interested in the character where no one see what you are when no one sees you. वो उस चरित्र में दिलचस्पी रखता है जहाँ पर आपको कोई नहीं देखता। You know who you are when no one sees you. आप ऐसे क्या व्यक्ति बनते हैं जब आपको कोई नहीं देखता? He's interested in building your character and my character. वो आपके और मेरे चरित्र को निर्माण करने में दिलचस्पी रखता And we है। learn this from the life of Joseph. और ये हम यूसुफ के जीवन से सीखते I हैं। don't think I've read any other story in the Bible where someone's blessings were delayed for so long. मुझे याद नहीं आता कि बाइबल में मैंने ऐसी कोई कहानी को पढ़ी है जिसकी आशीष इतने टाइम तक रुकी रही। You know, God was building Joseph's character from the different trials that he went through. उसके जीवन की अलग-अलग विपत्ति से परमेश्वर उसका चरित्र को निर्माण कर रहा था। Imagine Joseph's mentality. आप यूसुफ की मेंटालिटी के बारे में You know, I want सोचें। you to think how Joseph must have felt. मैं चाहती हूँ आप ऐसा सोचें कि यूसुफ ने कैसा महसूस किया होगा। He got a dream. उसको एक स्वप्न दिखा, God himself showed him that dream. परमेश्वर ने स्वयं उसको वो स्वप्न And he दिखाया thought, he was so excited that I found that dream. और वो बहुत खुश हुआ कि मुझे वो स्वप्न मिल गया And है he is so excited. और वो बहुत And he उत्साहित हुआ takes this good news, he starts running. और ये इस आनंद की बात को लेके उसने सुना और दौड़ने You लगा। know, he's running, he's so excited. I finally found what my purpose in life will be. उसको वो दर्शन मिला तो वो बहुत खुश हो, वो आनंद से झूमने लगा, दौड़ने लगा कि मुझे अपने जीवन का दर्शन पता चल गया But है। immediately after he got the dream, और उसको दर्शन मिलने के बाद he was put into the pit. उसको उस गड्ढे में डाला You गया। know, so many times when we get some good news, और बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमें बहुत आनंद की हमें बात पता चलती है, and then we are tested, our faith is then tested. उसके बाद हमारे विश्वास को परखा जाता You know, है। what do you do in such times? और उस समय पर आप क्या करते हैं? God is more interested in that. परमेश्वर उसमें ज्यादा दिलचस्पी You know, रखता do है। you give up on God, क्या परमेश्वर के ऊपर अपनी आशा को खो देते or do हैं? you hold on to Him more tight? क्या परमेश्वर की को कसकर पकड़ लेते You हैं? know, I love the life of Joseph. मुझे यूसुफ के जीवन से बहुत प्रेम है। You know, he got a dream, उसको एक दर्शन मिला and after the dream, और दर्शन के बाद he only got धोखा. उसको सिर्फ बिट्रेल, He only got betrayed by everybody. उसको सिर्फ धोखा ही मिला। You know, nobody, people whom he considered to be his own, with a very own, those very own people betrayed him. वो जिन लोगों को अपना मानता था उन्हीं लोगों से उसे धोखा मिला। You know, but God had a purpose in Joseph's life. पर परमेश्वर के पास उसके जीवन के लिए एक उद्देश्य You know, था। God showed you a dream? क्या परमेश्वर ने आपको कोई स्वप्न दिखाया है? Has He given you a vision for your life? क्या उसने आपको आपके जीवन के लिए कोई दर्शन दिया? You know, the vision may tarry, आपका दर्शन जो है उसमें शायद आने में देरी हो रही but today होगी। the Lord says it will surely come to पर pass. परमेश्वर आज कहता है कि वो आपके जीवन में जरूर There पूरा shall होगा। be no more delays in our life. हमारे जीवन में कभी भी कोई देरी नहीं Like होगी। the life of Joseph, जैसे जो यूसुफ का जीवन था, all you need to do आपको बस एक ही बात is करनी you है। need to hold on to God. आपको बस परमेश्वर की बात जो है उसे थामे रखना है। You know, he knew the vision God had given him. वो जानता था कि परमेश्वर ने उसे क्या दर्शन He दिया है। knew the destiny that God had ordained for him. उसको पता था कि परमेश्वर ने उसके लिए एक बहुत अच्छा भविष्य तैयार He करके put रखा है। his faith in God's plan rather than his situations. उसने अपना पूरा विश्वास परमेश्वर की योजना पे रखा, ना कि उसकी परिस्थिति He पर। didn't choose to believe his situation. उसने अपने परिस्थिति पर विश्वास रखने की मंजूरी नहीं दी। Imagine being sold as a slave. आप ऐसा कल्पना करें, उसको एक दास बनाकर बेचा He गया। was sold as a slave. उसको बेचा गया एक दास बनाकर। And then that man, he did not give up on God. पर वो
यूसुफ ने परमेश्वर के ऊपर अपने विश्वास को नहीं खोया। You know, Joseph's character was being tested through the entire process. वो सारी प्रोसेस में उसका जो चरित्र है वो परखा गया। His character was being built उसका चरित्र निर्माण किया through गया। all the years that he suffered. उसने जितने भी साल उसने जो विपत्ति उस पर आई थी He was being tested. उसकी परीक्षा वहां पर हुई। Would he be able to carry the vision that God had given him? वो परखा इसलिए गया ताकि वो जो दर्शन परमेश्वर ने उसने दिया था क्या वो उसको पूरा कर पाएगा। You know, then he goes to Potiphar's house. फिर वो पुतीफर के घर में ले And now he must ले have thought, जाएगा। oh, finally now my season has come. और फिर शायद उसने सोचा होगा कि हाँ अभी मेरा मौसम आ गया You know, है। finally now I know now the dream is going to come to pass. और उसने सोचा होगा कि हाँ जो दर्शन उससे मिला था अब वो पूरा होगा। But even there, God was testing Joseph's character. पर वहां पर भी परमेश्वर उसके चरित्र की परीक्षा कर रहा Now था। Joseph's character was being tested as a young man. क्योंकि अब वो जवान एक युवक हुआ था वहां पर उसका चरित्र की परीक्षा होने You know, लगी। even there God tested him. वहां पर भी परमेश्वर ने उसकी परीक्षा ली। You know, sometimes our delays are to make us more Christ-like. बहुत बार ऐसा होता है कि जो देरी हमारे जीवन में आती है वो हमें यीशु मसीह के समान बनाने You know, this की होती delay है। in Joseph receiving his promise, और जो देरी आई थी यूसुफ के जीवन में उसके वायदे को पूरा होने में it was to check if Joseph was really ready to be the prime minister. वो इसलिए था कि ताकि वो परखा जाए कि वो एक प्रधानमंत्री बन पाएगा या नहीं। You know, just imagine this. आप ऐसे कल्पना करें If we had brothers who were mean to us, हमारे ऐसे कोई भाई है जो हमसे स्वार्थी रूप से व्यवहार करते you know, हैं। imagine if your brothers sold you, आप ऐसा कल्पना करें कि आपके ही भाई ने आपको बेच दिया or they betray you in some way. या फिर किसी तरह से उन्होंने आपको धोखा दिया। You know, each one of us we want to take revenge. तो हमें से हर जो है हमें बदले की भावना हमें उत्पन्न होगी। You know, just imagine if we were in Joseph's place. तो आप कल्पना करें अगर आप यूसुफ की जगह पर You know, I होते। can't lie. मैं झूठ नहीं बोल सकती। If the people who sold me had come to me, और अगर जिसने मुझे बेचा वो अगर मेरे पास दोबारा I आए would say खाना नहीं है मत आओ. तो You know, I would not give them food. तो मैं उन्हें खाना नहीं I देती। would remember all the trials and all the suffering that I had to go through just because of those people. मैं वो हर एक बात का स्मरण करती जो जिससे गुजरी मैं हूँ जहाँ पे मुझे इतना सताव सहना पड़ा। But Joseph was not like that. पर यूसुफ वैसा नहीं था। You know, Joseph didn't do that. यूसुफ ने ऐसा नहीं His किया। mind was not revengeful. उसका जो मन था वो बदले की भावना You नहीं know, when रखता someone था। does something wrong to us, अगर किसी ने अगर कभी कुछ गलत हमसे किया our first human response हमारा जो इंसानी जो रवैया होता है is first कि मैं इसको बाद में देख लेगा. कि मैं You know, we say जब मैं बड़ा होएगा ना तब I'll show him. You know, when I get the power in my hand, that time I'll show. That is our human response. और हम इसी तरह से इंसानी रूप पे हम रिस्पॉन्स करते But हैं। are we becoming Christ-like? पर क्या हम यीशु मसीह के समान बन रहे Bible हैं? says in Philippians chapter 2, it's not on the screen, but Bible tells in Philippians chapter 2 that Jesus humbled himself even to the point of death. हमारे बाइबल फिलिपियोस के दूसरा अध्याय में बताते हैं कि यीशु मसीह ने अपने आप को नम्र किया उस क्रूस की मृत्यु तक। And he says, have this mind which was in Jesus also. और वो फिर कहता है कि जैसा यीशु मसीह का मन था वैसा ही आप में भी हो। Do you and I carry that mind? क्या आपके और मेरे पास वो मन है? You know, are we building our character? क्या हम अपने चरित्र को निर्माण Or कर are रहे we हैं? building our empires? क्या फिर हम हमारे राज्य की निर्माण कर रहे You know, हैं? are we building our character to be more like Jesus? क्या हम हमारे चरित्र को निर्माण कर रहे हैं यीशु मसीह के समान बनने के लिए? Or are we building our empires on this earth? या फिर हम इस पृथ्वी पर अपने राज्यों की निर्माण कर रहे You know, हैं? Joseph endured so much pain. पर यूसुफ ने बहुत सताव को सहा। He had to endure so many hardships. उसको बहुत कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। You know, but then God was checking whether he was ready to now become a prime minister. पर परमेश्वर वहाँ पे उसकी परीक्षा ले रहा था कि क्या वो पूरी तरह से एक प्रधानमंत्री बनने के योग्य है या नहीं। He had to endure so much discipline. उसको बहुत सारी डिसिप्लिन से गुजरना पड़ा। He had to really go through so much suffering. उसको बहुत विपत्तियों से गुजरना पड़ा। And then the Lord saw when his character was finally developed. और जब परमेश्वर ने देखा कि उसका चरित्र पूर्ण रीति से निर्माण हो And चुका now है he was ready. और वो तैयार हो चुका है, You know, those delayed blessings were then granted to him. और फिर वो सारी जो आशीष जो जिसमें देरी हो रही थी वो उसे मिल गई। You know what's fun to realize? एक बात जो हमें स्मरण How करनी many of है, you know the dream that Joseph saw? आप में से कितने लोगों को पता है जो दर्शन से मिला You था? know, Joseph just saw a dream where his brothers come and bow before him. उसको एक स्वप्न दिखा था कि वो उसके भाई उसके सामने आके उसके सामने नतमस्तक होंगे। You know, where in the dream did God tell him that he would now be ruling Egypt? पर अब उस स्वप्न में कहाँ पर परमेश्वर ने उसे बताया था कि वो मिस्र पे राज करेगा? When his character was fully developed, जब उसका चरित्र पूर्ण रीति से निर्माण हो गया, God gave him something beyond his तो expectation. परमेश्वर ने उसकी कल्पना से रहित उसके विपरीत बहुत बड़ी चीज उसको दी। The dream was only where his brothers would come and bow before
for him. स्वप्नों से ये देखा था कि उसके भाई उसके सामने झुक रहे हैं, You know, नतमस्तक but हो रहे what हैं। really happened? पर क्या सच में हुआ? An entire foreign nation had to come to Joseph. एक जो दूसरा बड़ा देश है वो उसके सामने आके झुक When रहा our था। character is fully developed, जब हमारा चरित्र पूर्ण रीति से निर्माण God होता is है checking. तो परमेश्वर देखते हैं। even if He's given you a small dream, अगर परमेश्वर ने आपको छोटा दर्शन ही He दिया will now हो, entrust you with a bigger vision. तो वो आप पर विश्वास करेगा कि वो आपको बड़ा दर्शन भी God देगा। is building our character through our seasons of delay. परमेश्वर हमारे चरित्र को निर्माण करता है इस देरी के मौसम के द्वारा। You know, how many of you know King David? कितने लोग जो है दाऊद राजा को You know, जानते he was हैं। known to be a man after God's own वो heart. परमेश्वर के हृदय के पीछे ऐसा इंसान कहलाया जाता You है। know, after Joseph, if there's any person who really touches my heart, it's King David. यूसुफ के बाद ऐसा कोई है जो मेरे हृदय को छूता है, वो है दाऊद राजा। You know, imagine the son who's the least liked by his father. ऐसे आप सोचो कि ऐसे वो एक पुत्र है जो अपने पिता से सबसे कम प्रेम वो जो किया जाता है। You know, Jesse had 7 sons. जैसे के पास में 7 पुत्र थे, 7 sons. 7 पुत्र थे, But Jesse told Samuel only about 6. पर उसने शमूएल को सिर्फ 6 बेटों के बारे में ही बताया। Imagine being rejected by your own father. आप सोचो कि आपका खुद का पिता ही आपका त्याग कर देता You know, है। his father did not think he was worthy of going to war. उसका खुद का पिता ही नहीं सोचता था कि वो कोई बड़ा कर सकता His है। father thought he was only worthy of looking after the sheep. वो ये सोचता था कि उसका छोटा बेटा जो दाऊद है वो बस भेड़ बकरी चराने के योग्य ही है। But in those pastures, पर उस चराइयों में God was building David's character. परमेश्वर दाऊद का चरित्र को निर्माण कर रहा था। In the waiting season, उस देरी के मौसम में God was seeing whether David will be a worshipper. परमेश्वर देख रहा था कि क्या दाऊद सच में एक आराधक You know, if बनेगा। you read the book of Psalms अगर आप भजन संहिता को पढ़ते and you हैं read the starting of those Psalms, और उसके अगर आप शीर्षक को पढ़ोगे you will realize most of the Psalms are written by David even before he defeated Goliath. तो आपको ये याद आएगा कि दाऊद ने जो भजन लिखे हैं वो गोलियत को हराने के पहले लिखे You हैं। know, I didn't know that Pastor Joshua was going to share this during the word. और मैं ये नहीं जानती थी कि बाजमान जोशुआ इसके बारे में बताएंगे। But imagine he was rejected by his earthly father. पर आप ऐसे कल्पना करें कि वो इस पृथ्वी की जो पिता है उन्होंने उसका नकार His किया। earthly father didn't think he was worthy of being a man to go to war. उसके सांसारिक पिता ने ये नहीं सोचा था कि वो उस योग्य है, David did not lose heart. पर उसने अपने हृदय को नहीं खोया। David said, "Okay, I don't want to know what Jesse thinks about और me. वो उसने कहा कि मैं ये सोचना ही नहीं चाहता कि मेरा पिता मेरे बारे में क्या I सोचता will है। be faithful in what my earthly father has told me to do. मेरे जो पिता ने मुझे इस पृथ्वी पे करने लगा है मैं उसमें विश्वास योग्य But हूँ। while I'm doing that, पर जब मैं ये कर रहा I हूँ will seek my heavenly तो Father." मैं अपने स्वर्गीय पिता की खोज में You know, he रहूंगा। sought God. उसने परमेश्वर की खोज When की। our blessings get delayed, जब हमारे आशीषों में देरी when होती our है, answers get delayed, जब हमारे उत्तर मिलने में देरी होती you है know, we forget God. तो हम परमेश्वर को भूल जाते It is हैं। in those seasons that we need to go to dive deep into worship. और हमारे देरी के मौसम में ही हमें परमेश्वर के पास और करीब जाने It और आराधना में मग्न it होना is है। in those seasons that we need to come closer to God. और उसी मौसम में हमें परमेश्वर के और करीब आना है। You know, are we ready to do that? क्या हम तैयार है वो सारी बात करने के Imagine लिए? King David defeated Goliath when he was about 17 years old. ऐसे कल्पना करें जब दाऊद राजा ने गोलियत को हराया था वो बस 17 साल का ही था। After that, he did not get the kingdom immediately. उसके तुरंत बाद उसको राज्य नहीं मिला। You know, he had to experience a 13-year delay till when he would finally live in the palace. तो उसको एक पैलेस में रहने के पहले उसको 13 साल तक विपत्तियों से गुजरना पड़ा। Imagine being anointed as king, आप इसे कल्पना करें कि जब उसका अभिषेक हुआ एक राजा के रूप में but he could not live in the house of the king. पर वो एक राजा के घर में नहीं रह You know, पाया। if I would tell if you would buy a house, मैं अगर आपसे ऐसा कहती हूँ कि अगर आप एक घर को लेते you know, हैं, imagine you all have purchased a house. आपने एक घर को खरीदा है Imagine that the builder tells you cannot live in the house for 13 years. और ऐसे आप कल्पना करें कि जो बिल्डर है वो आपसे कहता है कि आप 13 साल तक घर में नहीं रह All पाओगे। of you all would come to us as lawyers to file a case against your तो builder. आप हमारे पास में आते एक वकील के रूप में कि आप इनके अगेंस्ट में You हमारे know, केस imagine फाइल paying the करें। entire money आप ऐसे कल्पना करें कि आपने पूरा पैसा दे दिया and then 13 years you don't get to live in that house. और 13 साल तक आपको वो घर में रहने नहीं मिल रहा। What are you doing? तो आप क्या करोगे? You know what did David do? दाऊद राजा ने क्या He did किया? not fight Saul. उसने जो है वो शॉल का सामना नहीं किया। He went and sought God. वो गया और वो परमेश्वर की बात जोने लगा। Even during those 13 years, वो 13 साल के दौर में भी you know, David had many opportunities where he could take matters into his own hand. उसके पास में से बहुत बार ऐसा हुआ कि वो मुद्दों को अपने हाथों में ले सकता
सकता You था, know, Saul's own son Jonathan was going to help David. क्योंकि शाऊल राजा का जो खुद का बेटा था योनाथन, वो खुद दाऊद राजा की मदद करता But था। David decided not to take matters into his own पर hand. दाऊद ने ये सोचा कि मैं अपने हाथ में सारी बात को नहीं लूंगा, God was building David's character. और उसी क्षण में परमेश्वर दाऊद का चरित्र को निर्माण कर You know, रहा था। eventually when God saw that David's character is now fully और developed, जब परमेश्वर ने देखा कि दाऊद का चरित्र पूरी तरह से भी तैयार हो चुका है, that is when God decided now he is worthy to live in that palace. और फिर परमेश्वर ने ये सोचा कि अब वो योग्य है उस राजमहल में रहने के लिए। Imagine David touched God's heart in such a way अब इसे कल्पना करें कि दाऊद ने परमेश्वर के मन को इस प्रकार छुआ, that God chose David's family line to bring his son onto this earth. तो परमेश्वर ने दाऊद के घराने को ही चुना जिसके द्वारा यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आ सके। You know, that is how much David's character was developed. और इतने अद्भुत रीति से उसका चरित्र निर्माण हुआ था। You know, are your answers delayed in this season? क्या इस मौसम में आपके कुछ जवाब है जो रुके हुए हैं? You know, search and see whether God is building your character up. तो आप इसकी खोज करें कि क्या परमेश्वर आपके चरित्र को निर्माण कर रहे हैं। Does any area of your life need pruning? तो आपके जीवन में आपके जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र है जिसको तैयार करने की You know, जरूरत है। he's developing you to be more Christ-like, वो आपको तैयार कर रहा है ताकि आप और यीशु मसीह के समान so बने, that he can entrust you with a bigger blessing. ताकि वो आपको बड़ी आशीष से नवाजे। You may ask him for one answer. आप उसको बस एक उत्तर मांग But रहे when your हैं, character is fully और developed, जब आपका चरित्र पूरी तरह से तैयार you होता know, he will है entrust you with much more. तो वो आपको बहुत सारी बातें Because देगा। he is a God who can do exceedingly above all that we can even ask or imagine. वो क्योंकि वो ऐसा परमेश्वर है जो आपकी कल्पना से रहित बहुत ऊपर बातें कर सकता You know, है। the second reason why sometimes God allows us to go through a season of delay और दूसरी बात जब परमेश्वर हमें देरी के मौसम से जाने देते हैं is to build our faith. ताकि हम अपने विश्वास को निर्माण करें। Do you still believe that God is the same God who can perform what He's promised you? तो क्या आप आज भी विश्वास करते हैं कि परमेश्वर वही है जो वो वायदा करता है और पूरा भी करता है? You know, are you going through a season of delay? क्या आप अपने जीवन में देरी के मौसम से Have गुजर you रहे lost हैं faith in what God has promised? और आपको विश्वास है कि lost Have you lost faith in what God has promised और you? आपका विश्वास उस बात से हट गया है जो परमेश्वर ने आपको वायदा किया You know, है? do you still have the faith that can move mountains, saying that no, God, even if you were promised, I know you will bring it to pass? क्या आपके पास उस विश्वास है जो एक पहाड़ को भी हिला सकता है और आप कहते हो कि परमेश्वर मुझे पता है कि जो वायदा तूने किया वो आप पूरा करेंगे? You know, sometimes God wants to build up you and me and our faith. और बहुत बार ऐसा होता है कि परमेश्वर आपको और मुझे पूरी तरह से निर्माण करना चाहता है और हमारे विश्वास को भी। In the book of John chapter 11, और यूहन्ना इसका 11वां अध्याय verse 40, वचन you know, we 40, know the story where Lazarus was dead. और हमको कहानी पता है जहाँ पर लाजरस की मृत्यु हो चुकी You know, थी। all of us might have thought about this. When Lazarus was sick, Jesus could have just gone and healed him. और हमने बहुत बार सोचा भी होगा कि जब लाजर बीमार था तब यीशु मसीह जाके उसे ठीक कर सकते थे, You know, he could have just gone early and healed him. और वो जल्दी भी जाकर उसे चंगा कर सकते But थे। what does Jesus say? तो यीशु मसीह यहाँ पे क्या कहते He हैं? says, did I not tell you that if you would believe, you would see the glory of और God? यीशु मसीह ने उससे कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा का दर्शन पाएगी? Has he promised you? क्या उसने आपको वायदा किया Has है? he given you a dream? क्या उसने आपको एक दर्शन दिया Has है? he given you a vision? क्या उसने आपको एक दर्शन दिया Today है? the Lord is asking you, तो आज परमेश्वर आपसे do पूछता you है believe that you will see the glory of the कि Lord? क्या तू विश्वास करती है कि तुम परमेश्वर की महिमा को देखेंगी? Your faith and your character are being built up. आपका विश्वास और आपका चरित्र जो है उसका निर्माण किया जा रहा You know, है। in John chapter 11 verse 42, और यूहन्ना इसका 11वां अध्याय वचन 42, and he says, and I know that you always hear me. This is Jesus praying to God the Father. और ये यहाँ पर यीशु मसीह परमेश्वर पिता से प्रार्थना कर रहे हैं And he says, I know that you always hear me. और वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तू सदा मुझे सुनता है, But because of the people who were standing by, I said this, that they may believe that you sent me. किंतु चारों और इकट्ठी भीड़ के लिए मैंने यह कहा है कि जिससे वे यह मान सके कि मुझे तूने भेजा है। You know, Jesus knew that Lazarus was not well. यीशु मसीह जानते थे कि लाजरस को ठीक नहीं He है, could have rushed immediately and, you know, gone and healed Lazarus. और यीशु मसीह तुरंत जाकर लाजरस को चंगा भी कर But सकते he थे, himself delayed his going. पर उसने स्वयं ही उस जाने में देरी की। You know why? क्यों? Because before till that time, क्योंकि उस क्षण तक, his disciples had never seen a resurrection. क्योंकि उसके जो चेले हैं, उन्होंने आज तक पुनरुत्थान को They नहीं had देखा seen था, signs, wonders, and miracles, उन्होंने चमत्कारों को जरूर but they देखा था, had never witnessed a resurrection. पर उन्होंने कभी भी पुनरुत्थान को नहीं देखा था। And Jesus, you know, just in that verse, Jesus had spoken to them saying, I am the resurrection and the life. और तभी यीशु मसीह ने उनसे कहा था कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। So now he wanted to show them what resurrection actually meant. और अभी वो इस क्षण में वो उन्हें बताना चाहता था कि पुनरुत्थान का सही अर्थ क्या
होता है। You know, in John chapter 11 verse 45, और यूहन्ना इसका 11वां अध्याय वचन 45, the Bible says after Lazarus was brought back to life, वचन बताता है कि जब लाजर को जीवित किया गया, it says many of the Jews who had come to Mary and had seen the things Jesus did, they believed in him. इसके बाद मरियम के साथ आए यहूदियों में से बहुतों ने यीशु के इस कार्य को देखकर उस पर विश्वास किया। You know, if it would just be a healing miracle, अगर बस वो चंगा करने का चमत्कार होता, they had seen enough. उन्होंने बहुत देखे। If it would just be a normal miracle, अगर वो एक साधारण कोई चमत्कार it would होता, be enough. वो भी बहुत होता। But this delay पर ये जो देरी हुई was so that the glory of God could be revealed. ये इसलिए थी ताकि परमेश्वर की महिमा सबके This सामने आ पाए। delay ये जो देरी थी was so that faith in the life of those people could be risen. वो इसलिए थी ताकि लोगों के जीवन में विश्वास उत्पन्न हो Jesus सके। had delayed his going. परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने जाने में देरी Lazarus died. की। लाजरस की मृत्यु हो गई। Even his disciples must have wondered, "Arey, he loved Lazarus so much. Why is he not going?" उसके चेलों ने भी ये सोचा होगा कि अरे लाजरस से तो ये बहुत प्रेम करते थे, पर ये क्यों नहीं जा रहे? Even God, Jesus wanted to check the faith even of his disciples. यीशु मसीह के अपने चेलों का भी विश्वास को परखना चाहता You know, था। could they believe that he would be able to resurrect Lazarus? वो ये देखना चाहते थे कि क्या यीशु मसीह सच में लाजरस को जीवित कर सकते हैं? You know, has God given you a dream that you feel is dead? क्या आपको परमेश्वर ने ऐसा कोई दर्शन दिया है जो आपको लगता है कि वो मृत है? You know, I want to tell you today that your miracle is not dead, it is just sleeping. मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि आपका जो चमत्कार है वो मरा हुआ नहीं है, वो बस सो रहा It है। is not dead, it is only sleeping. वो मृत नहीं है, वो बस सो रहा है। As Jesus called forth और Lazarus जैसे यीशु मसीह ने लाजरस को with that उठाया one voice, एक आवाज के द्वारा, that season of delay quickened immediately, और वो जो देरी का मौसम था वो तुरंत समाप्त हो गया and Lazarus came out. और लाजरस बाहर आया। That is what God can do. और यही वो बात है जो परमेश्वर कर But do you and I have the faith that God can resurrect that which is dead in our life? पर क्या आप में और आपके पास और मेरे पास वो विश्वास है कि परमेश्वर हमारे जीवन के सारे मृत परिस्थिति You को know, पुनरुत्थान कर सकता we है? feel that God has given up. हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने हम पर आशा खो दी है, You know, but He is working even in those impossible situations. पर वो इम्पॉसिबल बातों में भी कार्य कर रहा है। He is working even in those impossible situations. वो सारे असंभव बातों में भी कार्य कर रहा You know, है। do you and I have faith, but क्या आपके और मेरे पास वो that विश्वास He है can resurrect that which is dead? कि वो सारी जो बातें मृत है उसको भी जिला The सकता world है? placed limitations. हमारी दुनिया जो है वो एक सीमा तय करती है। You know, they buried Lazarus and they covered it with a stone. उन्हें लाजरस को वहाँ उसको गाड़ दिया था और उसको एक बड़े पत्थर से उसे बंद कर दिया था And they उसका thought मुंह। Lazarus would not come out और उन्हें लगा कि लाजर कभी बाहर नहीं because आएगा now he was dead. क्योंकि वो मृत था। You know, is there a dream that you have hidden deep in your heart and just covered it with a stone? क्या आपके जीवन में ऐसा कोई दर्शन है जो आपने अपने हृदय में एक गाड़ के रख दिया है And और you उसे know, पत्थर से कवर and you करा, think it's never going to come to और pass. आप सोचते हो कि वो आपके जीवन में कभी पूरा नहीं होगा। But today the Lord is saying पर आज परमेश्वर आपसे He's कहता going है to call forth those dreams कि out. वो आपके जीवन के वो सारे स्वप्नों That को every बुलाएगा dead Lazarus in your life shall come back to life. और आपके जीवन के हर एक मृत लाजर फिर से जिलाया जाएगा। The delay is not because God has forgotten. और वो जो देरी हो रही है वो इसलिए नहीं कि परमेश्वर भूल गए हैं, It is for the glory of God to be revealed in a much bigger way. वो इसलिए ताकि परमेश्वर की महिमा बहुत बड़े पैमाने पर सबके सामने प्रकट की जाए। The third reason why sometimes God allows delays to happen, और तीसरी बात जो परमेश्वर हमारे जीवन में देरी को लेके आते it हैं, is to align situations. वो स्थितियों को संरेखित करने के लिए होता है। You know, sometimes God wants to align situations at the correct time. और बहुत बार ऐसा होता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में सारी परिस्थितियों को एक श्रेणी में लाना You know, चाहते हैं, God works in times and seasons. क्योंकि परमेश्वर जो है वो समय और मौसम में काम करते The हैं। book of Ecclesiastes says there's a time for dancing, there's a time for mourning. और हम बाइबल बताती है कि हमारे पास आनंद मनाने का और दुख मनाने का एक समय होता है, The Lord works in seasons. क्योंकि परमेश्वर जो है वो मौसम में कार्य करते Sometimes हैं। He's waiting for the right season to come so that you will receive the right blessing at that time. और वो बहुत बार सही समय के लिए रुकता है ताकि हमारे जीवन में सही समय पर सही आशीषें आ पाए। The book of 1 Samuel chapter 1 verse 2. पहला शमूएल इसका 11वां अध्याय वचन 2। I want you to look at Hannah's life. मैं हन्ना के जीवन के ऊपर आपका For so many years she longed for a baby. और बहुत सालों तक वो एक बच्चे की बाट जो रही And थी, then, you know, it didn't help that she had Penina who would keep, you know, troubling her and poking her. और उसकी जो सौतन थी पेनिना वो उसको सताती थी और उसको परेशान करती थी। Imagine being
barren. आप ऐसे सोचो कि आप बांझ है And then you have the other wife who has so many children. और जो आपकी सौतन है उसके पास में बहुत सारे बच्चे The हैं। Bible says even though Elkanah loved her more, it did not fill that void within her. और बाइबल में बताती है कि एल्काना जो है वो हन्ना से बहुत प्रेम करता था, पर उसके जीवन के उस खालीपन को वो पूरा नहीं कर पाता You know, था। it's something to wonder. The book of 1 Samuel chapter 1 verse 5 says, the Lord himself had closed Hannah's womb. और वचन शमूएल इसका पहला अध्याय 5वें वचन में बताता है कि परमेश्वर ने स्वयं उसके गर्भ को बंद किया था। You know, Hannah didn't know it. हन्ना को ये नहीं पता था, Elkanah didn't know it. एल्काना को ये पता नहीं When था। Peninnah was troubling Hannah, she didn't know it. जब पनीना उसको सता रही थी तो उसको भी ये बात नहीं पता But थी। Hannah's womb was being saved for a Samuel to be born. पर हन्ना का जो गर्भ है वो बचाया जा रहा था It was ताकि at the शमूएल का right जन्म हो time when सके, Samuel was born. क्योंकि वो सही समय पर जब शमूएल का जन्म हुआ। You know, Hannah had a child before. हन्ना के पास में पहले बच्चा Have you नहीं था। ever thought she would not have sent the child to the temple? क्या आपने ऐसा सोचा है कि अगर उसको पहले बच्चा तो क्या वो उसे परमेश्वर के पास भेज That child would not grow up with Eli. क्या वो जो बच्चा था वो इलाई के साथ में बड़ा नहीं होता Would था? she have dedicated that child to God? क्या वो अपने बच्चे को परमेश्वर को समर्पित करती? You know, would Samuel be born? क्या शमूएल का जन्म होता? Samuel was a mighty prophet of God. शमूएल जो था वो परमेश्वर का बहुत महान भविष्यवक्ता था। You know, he was a mighty prophet used by God. वो बहुत महान भविष्यवक्ता था जिसका इस्तेमाल परमेश्वर The स्वयं ने Lord किया। used Samuel to anoint Saul and David. और परमेश्वर ने शमूएल का इस्तेमाल किया ताकि वो दाऊद का और शाऊल का अभिषेक कर सके। Hannah wanted a child. हन्ना को एक बच्चा चाहिए था, But the Lord said, not now. पर परमेश्वर ने कहा अभी नहीं, Let Hannah keep seeking me. ताकि मैं चाहता हूँ कि हन्ना जो है वो मेरी खोज में रहे। Let Hannah keep seeking me. मैं चाहता हूँ कि वो मेरी खोज में रहे। You know, I don't know what is that the one thing that you are desperately crying out to God for. मैं नहीं जानती कि आप ऐसे कौन सी एक बात के लिए परमेश्वर की बात जो रहे But हैं, today the Lord says, continue seeking me. और आज परमेश्वर कहता है कि आप मेरी बात And जोते then रहे। Hannah goes to the temple. और फिर हन्ना जो है वो मंदिर में जाती And she है goes and dedicates Samuel. और वो जाती है शमूएल को समर्पित करती You know, है, that must have touched the Lord's heart. और ये परमेश्वर के हृदय को छू जाता है। Sometimes when we want our delayed answers to come quick. और हम बहुत बार जब चाहते हैं कि जो जिस चीज की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं उसका उत्तर में जल्दी मिले, You know, Hannah sacrificed the love that she could give her son and kept him at the temple. तो हन्ना ने उस क्षण में अपने प्रेम का बलिदान दिया था और अपने बच्चे को उस मंदिर में रखा। You know, are you ready to dedicate some part of your life and keep it at his temple? क्या आज आप तैयार हैं अपने जीवन के उस कुछ ऐसे कोई भाग को जो है परमेश्वर को समर्पित करने के There लिए? was a time that Samuel had to be born. एक जब समय आया जब शमूएल का जन्म होने वाला था, Hannah didn't know it. हन्ना को नहीं पता She था। cried year after year. वो सालों साल रोती रही, She kept crying. वो रोती रही, But God said, not now. तो परमेश्वर ने कहा अभी नहीं। Hannah didn't think that it was over. हन्ना ने ये नहीं सोचा कि अब सारी बातें खत्म हो She चुकी didn't है। accept that she was barren. वो स्वीकार ही नहीं करना चाहती थी कि वो बांझ है। She says, still I will go and worship before the Lord. उसने फिर भी कहा कि मैं जाकर परमेश्वर की आराधना करूंगी। You know, I don't know what situation you are going मैं through. नहीं जानती कि आप किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। Your situation will no longer be barren today. आपकी जो परिस्थिति है वो बांझ नहीं Your Samuel रहेगी। shall come forth in Jesus' name. आपके जीवन में आपका शमूएल जरूर यीशु मसीह के नाम में You know, आएगा। Hannah prayed. हन्ना ने प्रार्थना की, God answered. परमेश्वर ने उत्तर दिया, But there was a time. पर वहां पर एक समय था। In that time, उस समय में Hannah sought God. हन्ना ने जो है परमेश्वर की बात You know, there are सुनी। so many times when we make a promise, Lord, when you do this, I'll do this. और बहुत बार ऐसा होता है कि हम वायदा करते हैं कि परमेश्वर अगर तूने ऐसा किया तो फिर मैं ऐसा करूंगा। You know, do you really take your promise पर seriously? क्या आप उस वायदे को गंभीरता से लेते हैं? God takes His promise very क्योंकि seriously. परमेश्वर अपने वायदों को गंभीरता से लेता You know, है। have you promised the Lord that, Lord, if you do this for me, if you do this for my child, I am willing to do this. क्या आपने अभी कभी ऐसी प्रार्थना की कि परमेश्वर अगर तू मेरे बच्चे के लिए ये सारी बातें करेगा तो मैं तेरे लिए ये सारी बातें God करूंगी? is testing your faithfulness. तो परमेश्वर आपकी विश्वास योग्यता को परखता You know, है, it's not easy. क्योंकि ये आसान नहीं Are होता। you willing to keep your Samuel at the temple? क्या आप तैयार है अपने शमूएल के परमेश्वर के मंदिर में रखने के Imagine लिए? she had just weaned him off, आप बस ऐसा कल्पना करें कि वो बच्चे का बस दूध छूटा था, but still she said, no, I made a promise. पर तब भी उसने कहा कि नहीं, मैंने वायदा किया And you know, है। when I was in junior church, जब मैं जूनियर चर्च में थी and my mom had taken this lesson about
Hannah and Samuel. और जब पास्टर सूजा ने हन्ना और सैमुअल के बारे में कहानी बताई थी, And she made us imagine this picture. तो उसने हमें ये कल्पना करने के लिए I want लगाया। you all to imagine that. और आज मैं चाहती हूँ कि आप भी इसकी कल्पना करें। Imagine this young mother आप ऐसे कल्पना करें कि एक जवान माँ है and imagine one small baby. और एक छोटा बच्चा So है। let's take baby John for example. हम अभी जॉन का उदाहरण You know, लेंगे। imagine Hannah holding Samuel's hand walking. और आप इसे कल्पना करें कि हन्ना जो है वो शमूएल का हाथ पकड़ के चल रही This है, was the child that she had longed for. और ये वही बच्चा है जिसकी बाट उसने काफी सालों तक जोई She थी। had made a promise. उसने वायदा किया था And she said, Lord, you kept your promise. और उसने कहा कि परमेश्वर तूने तेरा वायदा पूरा So किया, I'll keep my तो promise. मैं मेरा वायदे को पूरा। Imagine that nearly 2 or 3-year-old Samuel walking up that hill going up to the temple. और आप कल्पना करें कि 2-3 साल का जो शमूएल है वो पहाड़ चढ़ के उस मंदिर पे जा रहा The है, young children need their mothers the most. और छोटे बच्चों को अपनी माँ की बहुत ज्यादा जरूरत But होती है। Hannah said, no, I've promised him, I've dedicated him to the Lord. पर हन्ना ने कहा कि नहीं, मैंने परमेश्वर से वायदा किया था और उसका समर्पित परमेश्वर को किया It था। cost her a lot. उसको बहुत त्याग उसको देना You पड़ा, know, it cost her a lot. उसको बहुत बलिदान वहां पर But देना yet पड़ा। that small boy Samuel, not knowing that once he reaches the temple, he's not going to come back. He's going to stay there without his mom. और वो शमूएल को तो बेचारे को नहीं पता था कि वो अभी मंदिर पे चढ़ जाएगा और अपनी माँ के साथ वापस नहीं आएगा। You know, yet Hannah fulfilled the promise that she had made. पर जो भी वायदा हन्ना ने किया था उसने उससे पूरा किया। You know, in Samuel, I have not added that, but in 1 Samuel chapter 2, और पहला शमूएल इसका दूसरा अध्याय, there's a song that Hannah sings. वहां पर एक गीत है जो हन्ना ने गाया And she था, says, oh, she who was barren और उसने कहा कि जो बांझ थी has now 7 children. अब उसको 7 बच्चे हैं। You know, so imagine she only completed her promise. तो आप इसे कल्पना करें कि उसने बस अपने वायदा को पूरा किया And she got 7 times more. और उसको 7 गुना ज्यादा मिला। She asked for 1 child. उसने बस एक बच्चे की She कल्पना said, I मांगा want था। 1 son. उसने कहा था मुझे बस एक She बेटा said, Lord, if चाहिए। you give that to me, उसने कहा कि परमेश्वर अगर तूने मुझे एक बेटा I दिया will give him to you. तो मैं उसे तुझे दे दूंगी। And what she promised, और जो उसने वायदा किया she था did it. उसने वो पूरा भी So the किया, Lord is no man's debtor. क्योंकि परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं He said, है। you keep your promise, वो कहता है कि तुम अपने वायदे को पूरा करो, 7-time blessing. मैं तुमको 7 गुना No, आशीष I दूंगा। don't know what is it that you have to bring to the temple before God. मैं नहीं जानती कि आपके वैसी कौन सी बात है जो आपको परमेश्वर के सामने उसके मंदिर में लानी है। Sometimes it can be, giving up your favorite TV show. हो सकता है बहुत बार कि आपको अपना जो पसंदीदा टीवी शो है उसको देखना बंद करना पड़ेगा। Sometimes it can be not playing your favorite mobile game. तो कभी हो सकता है कि आपको जो पसंदीदा आपका मोबाइल गेम है वो आपको नहीं खेलना होगा। Sometimes it can be giving up your most favorite food. और बहुत बार ऐसा होगा कि आपको जो आपका पसंदीदा खाना है उसका त्याग करना You पड़ेगा। know, it's not always about money. ये हमेशा पैसों के बारे में नहीं You know, we are होता, not asking for people's money. और हम लोगों के पैसों के को भी नहीं You know, मांगते। don't mistake what I'm trying to say. और जो मैं बताना चाहती हूँ आप इसको गलत इसका मतलब ना We are निकालें। not asking you to come and give your money here. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप यहाँ पर आके अपना पैसा दो, I'm asking, what have you promised the Lord? मैं ये कह रही हूँ कि आपने क्या परमेश्वर What को वायदा did किया you है, tell the Lord? आपने परमेश्वर से क्या कहा, You know, are you willing to give that up? क्या आप तैयार है उसे देने के लिए You know, परमेश्वर those को? delays have come for a purpose. क्योंकि जो देरी आई है वो एक उद्देश्य से आपके It is जीवन to में आई build है, your character. वो आपके चरित्र निर्माण It करने is के to लिए आई build है, your faith. वो आपके विश्वास के निर्माण And it करने is के to लिए आई है, align the God-given situations in your life. और वो परमेश्वर ने जो परिस्थिति आपके जीवन में लाई है उसे एक श्रेणी में लाने के लिए You know, है। but we need to understand. पर हमें एक बात को समझना है, Sometimes delays are demonic. क्योंकि बहुत बार हमारे जीवन में जो देरी होती है वो शैतानी भी होती है। You know, there are certain demonic delays. हमारे जीवन बहुत बार दुष्ट आत्मा भी हमारे जीवन में विलंब ले आता You है। know, I don't know if many of you know this, but there is a spirit of delay that operates. पर मैं नहीं जानती कि आप लोगों को पता है या नहीं, पर वहां पर एक दुष्ट आत्मा की विलंब भी होता है। You know, there's a spirit of delay that operates in the spiritual realm. और आत्मिक स्तर पे देरी की आत्मा भी होती है। You know what that spirit's work is? और वो आत्मा का कार्य क्या होता है? It is to stop God's answer to reach you. और वो है परमेश्वर के उत्तर को वो विलंब करता है आप तक पहुंचने You know, में। it is not something that I am telling. ये मैं नहीं बता It रही, is the book of Daniel that teaches us. ये दानियल की किताब में लिखा हुआ The book है। of Daniel chapter 10 verse 12. दानियल की पुस्तक इसका 10वां अध्याय वचन Now we 12। know that Daniel had set his mind to fast and pray. हम जानते हैं कि दानियल ने अपने मन को लगाया था ताकि वो प्रार्थना करे और उपवास करे। You know, all of us, I was just reading this and that is when I realized that all of us consider the Daniel fast to be for 21 days. और जब मैं पढ़ रही थी और जब मुझे ऐसा स्मरण में आया,
कि हम लोग सब ये सोचते हैं कि दानियल ने 21 दिन तक उपवास किया, But Daniel never said he will fast for 21 पर days. दानियल ने ऐसा बोला नहीं था कि वो 21 दिन तक उपवास करेगा। He said, I will go on a fast. वो उसने बोला था कि मैं उपवास I don't करूंगा। know how long it will come. वो मैं नहीं जानता कि वो कितने दिन तक करना I है, don't know how long it's going to take. और मैं नहीं जानता कि कितना समय उसमें But I लगेगा, will fast. पर मैं उपवास करूंगा। You know, sometimes we think, oh, when I've done it, I'll go on a Daniel fast. और मैं बहुत हम में से बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि मैं दानियल उपवास पर So जाऊंगा। 21 days. तो 21 दिन, You know, we've done it twice. और ये मैंने 2 बार किया है। As a family, we did it once. हमने एक परिवार के रूप में एक बार किया, And then last year also in August, Pastor Joshua, Pastor Roshni and me had done this. और पासवान जोशुआ, पासवान रोशन, पास्टर शमा ने पिछले साल भी ये किया था। So we were on a Daniel fast. तो हम दानियल So the उपवास पर Daniel थे। fast is the type of fast that Daniel did was that he gave up all choice foods. तो दानियल ने जो उपवास किया था उसमें उसको जो मनपसंद उसका जो खाना था वो उसने खाना बंद कर दिया And था, he basically lived on dal and chawal. So, you know, that was his fast. और ये उसका उपवास था। So even we said, no, even we will do it. तो हमने कहा कि हम भी यही For करेंगे, 21 days we did it. तो हमने 21 दिन ये For किया, 22nd day we made mummy make mutton. और फिर 22वें दिन हमने मम्मी को कहा कि Because मटन Daniel बनाए, fast 21 days. क्योंकि दानियल ने तो 21 दिन उपवास But you किया know, था। yesterday, 2 days ago, when I was making the word, that is when it struck me. Daniel never decided to pray for 21 days. He said, till my answer doesn't come, I'm going to fast and pray. और 2 दिन पहले जब मैं इस पे मनन कर रही थी तब मुझे ऐसे महसूस हुआ कि दानियल ने तो नहीं कहा कि मैं 21 दिन उपवास करूंगा, उसने ये कहा कि जब तक मुझे मेरे प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा मैं उपवास You करूंगा। know, how many of us are like that? हम में से कितने लोग वैसे ही Till हैं, the answer doesn't come, I'm going to keep knocking heaven. जब तक मुझे उत्तर नहीं मिलेगा तब तक मैं स्वर्ग के द्वार को खटखटाता And let's look रहूंगा। at the spirit of delay. और आप इस देरी की आत्मा को देखिए। You know, the book of Daniel chapter 10 verse 12 says, दानियल इसका 10वां अध्याय वचन 12 कहता when है, Daniel set his heart to pray, तो जब दानियल ने सोचा कि मैं प्रार्थना करूंगा, you know, an angel came. तो एक दूत वहां पर आया, An angel came after 21 days of him being in the fast. और दानियल जब 21 दिन उपवास में था उसके बाद वो दूत वहां पर आया, And the angel tells him, do not fear, Daniel, for from the first day that you set your heart to understand and to humble yourself before your God, your words were heard, and I have come because of your words. इसके बाद दर्शन के उस पुरुष ने फिर बोलना आरंभ किया, उसने कहा, दानियल डर मत, पहले ही दिन से तूने यह निश्चय कर लिया था कि तू परमेश्वर के सामने विवेकपूर्ण और विनम्र रहेगा। परमेश्वर तेरी प्रार्थनाओं को सुनता रहा है, तू प्रार्थना करता रहा है, मैं इसलिए तेरे पास आया हूँ। And then the verse 13 says, और 13 वचन कहता now this है, angel is telling Daniel, तो ये जो दूत है ये दानियल से he कहता है, says, from the first day that you decided you are going to pray, और जब पहले दिन से जब तूने सोचा कि तू प्रार्थना करने वाला है, from that day God answered your prayer. उसी दिन से परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना का उत्तर दिया। You know how many of you know who's the angel who gives messages, the messenger angel? आप में से लोग क्या कोई जानता है कि जो दूत जवाब देता है उसे You know, क्या it was कहता है? angel Gabriel. वो एंजल गैब्रिएल You था। know, angel Gabriel would be the angel who brings the message. तो स्वर्गदूत गैब्रिएल जो है वो प्रार्थना का उत्तर लेके आता है। You know, so I'm assuming it is angel Gabriel here. और मैं कल्पना कर रही हूँ कि ये दूत गैब्रिएल ही है। You know, even before Daniel prayed, दानियल की प्रार्थना करने से पहले God sent him the answer. परमेश्वर ने उत्तर भेज दिया You know, so था। how many of you we have decided that tomorrow onwards I'm going to knock heaven and I'm going to get my prayers answered? हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने ऐसा निर्णय किया कि मैं कल से स्वर्ग के द्वार को खटखटाऊंगा और प्रार्थना का उत्तर The पाऊंगा। angel tells Daniel, वो दूत दानियल से कहता है, the day that you set your heart to pray, जिस दिन तूने अपने मन को इस बात पर लगाया कि तू प्रार्थना करेगा, that day God sent his और answer. उसी दिन परमेश्वर ने अपने उत्तर को भेज दिया था। You know, then the verse 13 says, और वचन 13 बताता now this है, is angel Gabriel talking to Daniel. ये दूत गैब्रिएल दानियल से बात कर He रहे says, हैं। but the prince of the kingdom of Persia, वो कहता है कि फारस का जो युवराज है, you know, he withstood me 21 days. तो वो उसे लड़ता रहा 21 दिन तक। And behold, Michael, one of the chief princes, came to help me. इसके बाद जो माइकल जो एक अत्यंत महापूर्ण युवराज है वो उसकी मदद करने आया, And he says, for I had been left alone there with the kings of Persia. क्योंकि मैं वहां फारस के राजा के साथ उलझा हुआ था। Now we are going to dive a little into more spiritual, into the spiritual realm now. हम आत्मिक स्तर के ऊपर और बात You करेंगे। know what we live here? हम जो यहाँ पे रहते हैं That's the natural realm. ये जो है वो नेचुरल स्तर है, नैसर्गिक, नैसर्गिक it's the स्तर है। natural realm. ये नैसर्गिक स्तर है, But there's a spiritual पर realm. एक आत्मिक स्तर भी How है। do we know this? ये हमें कैसे पता? Apostle Paul says, our fight is not against flesh and blood. क्योंकि अब जो प्रेरित पौल है वो कहते हैं कि हमारा जो युद्ध है वो मांस और लहू से नहीं है, You know, it is against principalities and powers of ये darkness. अंधकार की सामर्थ और अधिकारियों
भाइयों से So है। we are not fighting each other. तो हम एक दूसरे से नहीं We लड़ते, are fighting those demons in the heavenly realms. हम उस दुष्ट आत्मा से जो आत्मिक स्तर पे, उनसे हम लड़ते हैं। So God sent his answer. परमेश्वर ने अपने उत्तर को भेजा, And then this prince of Persia is और there. ये फारस का राजा वहां पर आया। Prince of Persia does not literally mean a king who was in Persia. फारस का राजा का अर्थ ये नहीं है कि वो एक ऐसा राजा है जो फारस में रहता है। It meant the spirit of delay. इसका अर्थ है जो देरी का आत्मा। Prince of Persia meant the spirit of delay. फारस का राजा का अर्थ होता है देरी का आत्मा। The prince of Persia was a principality. वो जो फारस का राजा है वो एक आत्मिक तौर पे एक चीज है। He's a principality. वो एक He's like a governor. हाँ, वो एक वहां पे एक अधिकारी है। The kingdom of devil is like the kingdom of God. जो शैतान का जो राज्य है वो परमेश्वर के राज्य के समान ही है। When last year I had gone to Dubai for Prophet Ed's meetings. जब मैं पिछले बार दुबई गई थी प्रॉफिट एड की मीटिंग के लिए, He was teaching us from the word. वो हमें वचन से सिखा रहे थे। And he told me this very interesting point. और उन्होंने मुझे एक बहुत अचंभित करने वाली बात बताई। Before Lucifer fell, शैतान के गिरने से पहले Lucifer was a part of the kingdom of God. लूसीफर जो था वो परमेश्वर के राज्य का एक भाग So था। he knew exactly how the kingdom of God functioned. तो उसको पता था कि परमेश्वर का राज्य किस तरह से कार्यरत So है। you know what he did when he fell? तो जब वो गिरा तो उसने क्या किया? He imitated the exact thing in the kingdom of darkness. जो परमेश्वर का राज्य जिस तरह से चलता था उसने पूरी तरह से अंधकार की सामर्थ्य में उसकी नकल की। Because he was so well versed with the kingdom of God. क्योंकि वो पूरी तरह से और अच्छे से जानता था कि परमेश्वर का राज्य किस तरह से कार्यरत है। The kingdom of God works in rules and regulations. क्योंकि परमेश्वर का जो राज्य है वो एक तौर तरीके से कार्यरत It's not होता है। chaotic. वहां पर कोई गड़बड़ी नहीं होती। There is order. वहां पर एक स्तर होता है। The kingdom of darkness is like that too. और जो अंधकार का राज्य है वो भी वैसा ही है। So how we have archangels in the kingdom of God? जैसे हमारे पास में दूत है परमेश्वर के राज्य में, There are principalities in the kingdom of darkness. तो अंधकार के राज्य में भी उसी तरह के अधिकारी है। So in a principality, जो एक अंधकार की सामर्थ्य और जो अधिकार है वहां पर, you know what a principality does? वो क्या करती है? They govern a land. वो एक स्थान पे राज करती है। India has a principality. भारत पर भी ऐसे राज करने वाले गवर्नर्स है। In the spiritual realm, I'm not talking about the earthly realm. ये सारी बातें आत्मिक स्तर पे होती है। In the heavenly realm, और स्वर्गीय स्तर पर there is a principality that governs even India. वहां पर भी एक ऐसी अधिकारी है जो भारत पर राज्य करती है। And this principality was in Persia. और ये जो फारस में जो अधिकार चल रहा था, It was the spirit of delay. वहां पर देरी का आत्मा था। It was such a strong demon. और वो इतना ताकतवर शैतान था that even Gabriel could not fight him. ताकि गैब्रियल जो दूत है वो भी उससे लड़ नहीं पा रहा And था। Gabriel says, I had to withstand him 21 days. और उसने कहा कि मेरे को 21 दिन तक उसका सामना करना Imagine when sometimes we set our heart to pray, पड़ा। और अब कल्पना करें कि जब हम अपने हृदय को प्रार्थना पर God लगाते हैं, has sent the answer. परमेश्वर ने उत्तर भेज दिया। But in the heavenly realms, there's a battle that is going पर on. आत्मिक स्तर पे एक युद्ध चलता है। Because the devil doesn't want God's answer to reach you क्योंकि immediately. शैतान नहीं चाहता कि आपके पास में परमेश्वर का He उत्तर तुरंत आ he जाए। wants to frustrate वो you. चाहता है कि आप परेशान हो। He wants you to lose your hope in the वो Lord. चाहता है कि आप परमेश्वर पे अपनी आशा को खो दे। So what does he do? तो वो क्या करता He है? sends his demons to fight. तो वो अपने दूतों को भेजता And है there's लड़ने a के battle लिए। that goes on. और वहां पर एक युद्ध चलता है। And then Gabriel was so tired he couldn't fight this strong और principality. गैब्रियल स्वर्गदूत इतना थक गया था कि वो सिर्फ डर नहीं पा रहा And था। then he says, I called on Michael, the archangel. तो फिर वो कहता है कि फिर मैंने माइकल को बुलाया। And Michael was the angel of war. और माइकल जो है वो युद्ध का दूत है। Even today, Michael is the angel of war. आज के दिन तक भी माइकल जो है वो युद्ध का दूत है। And Gabriel tells Daniel, and as soon as Michael came, they continued fighting, but I could come and give you the message. और फिर गैब्रियल दानियल से कहता है कि जैसे माइकल आया उनका युद्ध चलता रहा और मैं तुरंत वहां से निकल के तुझे उत्तर देने आ गया। As Christians, we forget that there is a difference in between God answering us and our answers actually reaching us. और हम ईसाई होने के नाते हम बहुत बार भूल जाते हैं कि परमेश्वर उत्तर देता है और परमेश्वर के उत्तर आने में जो देरी होती है, There is a force that operates in between. एक फोर्स होता है जो इनके बीच में कार्य करता है। The prince of Persia, जो फारस का राजा the है, spirit of delay. जो
देरी का जो आत्मा है, he stopped Daniel's answer for 21 days. उसने दानियल के उत्तर को 21 दिन तक रोक रखा। Imagine Daniel was a governor. आप ऐसे कल्पना करें कि जो दानियल था वो एक अधिकारी थे। You know, and that man Daniel, he prayed continuously and his answer took 21 days. आप ऐसा सोचो कि वो 21 दिन तक लगातार प्रार्थना करते रहा और उसका उत्तर आने में देरी हो रही And थी। then what are you and I doing? तो फिर आप और मैं क्या कर रहे You know, हैं? we forget. One day we pray and we forget. तो हम एक दिन प्रार्थना करते हैं और भूल जाते हैं। And what happens when we don't pray? और फिर क्या होता है जब हम प्रार्थना नहीं Because करते? we are not sending enough manpower into the spiritual realm. अब ऐसा होता है कि हम बहुत वो शक्तिशाली चीजें स्वर्गीय स्तर में नहीं भेजते। So that is why, you know, angels of God do not have the power to now withstand those forces. इसी कारण स्वर्गदूत के पास में वो सामर्थ्य नहीं होती ताकि वो दुष्ट आत्माओं से लड़ सके, Because we stopped praying. क्योंकि हम प्रार्थना करना रोक देते हैं। You know, that is but what did Daniel do? पर दानियल ने क्या He किया? continued praying till his answer didn't reach वो him. प्रार्थना लगातार करता रहा जब तक उसका उत्तर उससे नहीं मिला। Imagine if it took Daniel 21 days, आप कल्पना करें कि दानियल को अगर 21 दिन लगे how much more will it take you and me? तो आपको और मुझे कितना टाइम लगेगा उस प्रार्थना के उत्तर के लिए? You know, the spirit of